सबको नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करें। अभी हमारे बीच में एक भैया आए हैं। भैया जो है अपने बारे में जैसा यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उसके बारे में बताएंगे। विदेश में काम करते थे, विदेश में ही रहते थे बहुत साल। कैसा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर करके इन्होंने समझ लिया, इसके बारे में हमसे बातचीत करेंगे। ठीक है, ताली बजाकर भैया को स्वागत करेंगे। ठीक, யாவருக்கும் மாலை வணக்கம்। आप सबों को शुभकामनाएं इस शाम के वेला में। என் பேர் சரவணன்। मेरा नाम सरवणन है। இதே ஊர் தான் எனக்கு। यही शहर है मेरा रहने का स्थान। நான் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் படித்து அதுக்கப்புறம் டிப்ளமோ படிச்சிருந்தேன்। இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் தான் படித்தேன்। यहाँ बगल में जो स्कूल था वहाँ मैं पढ़ा, फिर मैंने डिप्लोमा किया। படிச்சுட்டு இங்கேயே பக்கத்தில் இருக்கிற கம்பெனியில் காலேஜிலேருந்து வேலைக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க। इसी शहर में ही नौकरी के लिए भी मुझे सिलेक्शन किए थे, नौकरी भी मिला। அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன், கொஞ்சமாக சம்பளம் கிடச்சிச்சு। मैं काम कर रहा था, थोड़ा तनख्वाह मिला हमको। ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம்னு போன பிறகு அந்த சம்பளம் எனக்கு பத்தலை। 2 साल या 3 साल के बाद वो वेतन मुझे काफ़ी नहीं पड़ा। அப்போது எங்கே போனால் நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும், கொஞ்ச நாளில் நிறைய சம்பாதிக்கணும், எங்கே போகலாம், என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது मैंने ऐसा सोचा, कहाँ जाएंगे, कम दिन में ज़्यादा कमाना है, कहाँ जाकर ऐसा कमाएंगे, ऐसा मैंने सोचने लगा। அப்போ எல்லாருமே வெளிநாடுகளுக்கு போய் வேலை செய்தால் கொஞ்ச நாளில் நிறைய சம்பாதிக்கலாம், சீக்கிரமாக ஊருக்கு வந்துடலாம்। तब कुछ लोग बोलने लगे, हम लोग विदेश जाएंगे तो कुछ दिन में ज़्यादा कमा सकते हैं, फिर हम लोग इधर आ सकते हैं, ऐसा बोले थे। அப்போ முதல்ல நான் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு அப்ளை பண்ணேன்। நான் நினச்சிக்கிட்டேன், ஒரு வருஷம் மட்டும் வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்யணும், ஓடி சொந்த ஊருக்கு திரும்பி வந்துடணும்। मैंने सोचा 1 साल केवल विदेश में जाकर काम करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, फिर यहाँ अपने जहाँ पर तिरुनेलवेली आ जाना है। முதல்ல போனேன், ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு। मैंने गया, मुझे एक नौकरी मिला। ஒரு குறைவான சம்பளத்தில் ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு। ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिला, कम वेतन ही मिला था। அங்கே ஒரு 3 வருஷம் வேலை பார்த்தேன்। वहाँ जो है 3 साल मैंने काम किया। அப்புறம் தான் ஒரு யோசனை வந்துச்சு। तब जो मुझे ऐसा विचार आया, டிப்ளமோக்கு இவ்வளோ தான் சம்பளம் கிடைக்கும், நம்ம இன்ஜினியரிங் படித்தா இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கலாம்। डिप्लोमा पढ़ाई के लिए इतना ही वेतन मिलेगा। वेतन कैसा मिलता है, पढ़ाई के अनुसार ना देते हैं, इसलिए हम इंजीनियरिंग करेंगे तो और ज़्यादा वेतन मिलेगा। அப்போது இன்ஜினியரிங் அங்கே போய் இன்ஜினியரிங் படித்தேன்। इसलिए मैं जो है विदेश में जाकर इंजीनियरिंग पढ़ा। வேலை பார்த்துட்டு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா டைமில் படிக்கிறது। काम करते करते पढ़ाई भी किया था। சம்பாதிக்கிற பணத்தை கொஞ்சம் பணத்துக்கு படிப்புக்கும் செலவழிக்கிறது। जो पैसा कमाया उसी को अपना पढ़ाई के लिए भी मैंने खर्चा किया। எனக்கு என்ன யோசனை, படிப்புலாம் எனக்கு விருப்பம் இல்லை, मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इच्छा नहीं था। எனக்கு ஒரே நோக்கம் நிறைய சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்। मुझे एक ही लक्ष्य था, ज़्यादा कमाने के लिए क्या करना है। நிறைய படித்தா நிறைய சம்பளம், அப்போ நான் படிக்கிறேன்। ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा कमा सकते हैं, है ना, इसलिए हम पढ़ेंगे ज़्यादा। அப்புறம் வேறு கம்பெனிக்கு போனால் நிறைய கிடைக்கும், அப்போ இந்த கம்பெனிலேருந்து அந்த கம்பெனிக்கு, அந்த கம்பெனிலேருந்து வேறு கம்பெனிக்கு, அப்படி மாற்றிக்கிட்டே இருந்தேன்। और भी एक विचार आया, एक ही कंपनी में काम करने से ज़्यादा पैसा नहीं देता है, दूसरा कंपनी जाएंगे तो और ज़्यादा मिलेगा, इसलिए ऐसा कंपनी बदलते काम करते रहा पैसा के लिए। எனக்கு என்ன பெரிய நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா, मुझे क्या भरोसा था मालूम है, நிறைய பணம் சம்பாதிச்சுட்டா ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो பெரிய அமைதி, பெரிய சமாதானம், பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்கும், बड़ी शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगा। அப்போ எப்படியாவது நிறைய சம்பாதிக்கணும், ஊருக்கு வந்து செட்டில் ஆயிடணும்। इसलिए शांति चाहिए तो ज़्यादा पैसा कमाना है, फिर अपना गांव आके आराम करना है, यही मेरा विचार था। ஊருக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டணும், பிஸ்னஸ் நிறைய பண்ணணும், பெட்ரோல் பம்ப் வைக்கணும், இப்படி நிறைய பிஸ்னஸ் பிளான் எல்லாம் இருந்துச்சு। मैं गांव में आने के बाद एक ऐसा बड़ा मकान बनाना है, पेट्रोल पंप
रखना है, ऐसा ऐसा बहुत बिजनेस करके एकदम सेटल होना है, ऐसा मैंने सोचा था। அதையே நினைச்சு நினைச்சு அங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். यही स्वप्न के साथ मैं वहाँ विदेश में काम कर रहा था। நான் வெளியில வேலை பார்க்கும்போது அங்க இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் புது கார் வாங்குவாங்க. நான் வாங்க வேண்டாம், இது நம்ம ஊரு கிடையாது, நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வாங்கிக்கலாம், இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல. मेरा दोस्त लोग वहाँ मेरे साथ काम करने वाले कार खरीदेंगे, लेकिन मैं खरीदा नहीं था, क्योंकि यह हमारा देश नहीं है, हमारा गांव नहीं है। जब हम अपना देश जाएंगे वहाँ गाड़ी घोड़ा सब खरीदेंगे। அங்க சாப்பிடுறதோ அங்க இருக்கக்கூடிய நல்ல வசதிகளை என்ஜாய் பண்ண வேண்டாம், நம்ம ஊருக்கு போய் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். वहाँ जो है मजा नहीं लेना है, अपना गांव जाकर सब कुछ हम एंजॉय करेंगे। இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் எங்களுடைய சொந்த குடும்பத்தில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய அத்தைக்கு ஒரு நல்ல விடுதலையை, அவங்க உடம்புல இருந்த ஒரு பெரிய வியாதியை அற்புதமாக சுகமாக்குனாங்க. ऐसा समय में मेरा घर में मेरा सास को परमेश्वर उनका बीमारी से चंगाई किया, अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई दिया। நான் லீவுக்கு வந்து பார்த்தேன், அவங்களுக்கு நல்ல சுகம் உண்டாயிருந்துச்சு. ஆனால் நான் இயேசு சுகம் கொடுக்கறத ஏற்றுக்கவே இல்லை. मैंने गांव में आकर देखा वो एकदम पूरा पूरा चंगाई के साथ रही थी, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं, यीशु कैसा चंगाई देता है इस पर मैंने विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह चंगाई देने वाला करके। இயேசு தான் சுகம் கொடுத்தாங்கன்றதை நான் ஏற்றுக்கவே இல்லை. என் ஒரே நோக்கம் பணம் சம்பாதிக்கணும். यीशु मसीह चंगाई दिया, इसको मैंने ग्रहण नहीं किया। मेरा मन में एक ही विचार था, पैसा कमाना है। லீவு முடிஞ்சது உடனே வேகமாக வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ண, தேவையில்லாமல் பணம் வீணாகக்கூடாது. லீவில் இருந்தோன்னா பணம் வீணாக போயிடும், அதை விட வேலைக்கு போயிட்டா பணம் நிறைய கிடைக்கும். हम छुट्टी में यहाँ रहेंगे तो क्या होगा, घर में पूरा पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं रहेंगे। हम कमाना है तो अपना काम करने के जगह हम चले जाना है, ऐसा सोचकर मैं तुरंत कमाने के लिए चला गया। எங்கள் அத்தைக்கு இயேசு கொடுத்த சுகம் எப்படி நடக்கும், அப்படி ஒரு கடவுள் இருக்கிறாரா, அப்போ இவ்வளோ நாள் நான் இங்கே இருக்கிறேன் எனக்கு தெரியவே தெரியாத, அப்படி ஒரு கடவுள் இருந்தால் எனக்கு தெரியட்டும்னு நான் துபாயில் இருக்கும்போது, அப்படி இருந்தால் எனக்கு உடனே தெரியட்டும், இது நான் யாரும் சொன்னாலும் கேட்கவே முடியலையே, அவர் தான் சுகம் கொடுத்தார், அவர் தான் சுகம் கொடுத்தார் எல்லாருமே சொல்கிறாங்களே, எனக்கு அதில் நம்பிக்கையே வரலையே, அப்படி ஒரு கடவுள் இருந்தார்னா அவர் எனக்கு நான் இருக்கிற துபாயில் அவர் தெரியட்டும்னு நான் கேட்டேன். मैंने उस समय दुबई में रहा था, सब लोग बोल रहे मेरे सास को यीशु चंगाई दिया। सच में वो ऐसा परमेश्वर का तो वो मेरे सामने आने पाए, मैं उसको देखूंगा, तब मैं उनको भरोसा करूंगा। நான் ஒரு கோபமாக இயேசு இருந்தால் எனக்கு தெரியட்டும்னு தான் கேட்டேனே தவிர அவர் மேலே அன்புலாம் இல்லை. எனக்கிட்ட இருக்கிற ஒரே அன்பு பணத்தின் மேலே தான் இருந்துச்சு. मैं जो है यीशु मसीह से प्यार करके उसको देखना ऐसा सोचा नहीं, मेरा प्यार केवल पैसा पर, केवल पैसा पर। அப்படி இருக்கும்போது நான் ஒரு நாள் உண்மையாக இயேசு இருந்தால் எனக்கு தெரியட்டும்னு கேட்டபோது நான் இருந்த அறையில் இயேசு பிரசன்னமானார். मैं ऐसा सोचा था, ढूंढा था, सच में यीशु परमेश्वर का तो मैं उसको देखना है। उसी दिन मेरे सामने उसी घर में प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया मुझको। அப்போதான் இப்படி ஒரு இயேசு உண்மையிலே இருக்கிறாரு, அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரு, நம்ம என்ன பேசினாலும் நம்ம என்ன கேட்டாலும் அதற்கு உடனே பதில் தரும்படிக்கு அவர் இன்னைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். तब जो है मुझे समझ में आया यीशु जिंदा है, वो हमारा बात को सुनता है, प्रार्थना को सुनता है, जवाब देता है, इसको मैंने समझ लिया। அந்த இயேசு இன்னும் என்னென்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் முதல் முறையாக இந்தியாவுக்கு வந்தது, ஊருக்கு வந்தது. ओ यीशु मसीह और क्या कर सकता है इसको समझना है, ऐसा सोचकर मैंने दुबई से फिर हिंदुस्तान में आया। பணத்தின் மேலே இருக்கிற அந்த பெரிய ஆசை முழுமையாக வரவே இல்லை, விடுதலை ஆகவே இல்லை. जो पैसा के ऊपर मुझे लालच था उससे छुटकारा नहीं मिला। கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இயேசு எனக்கு என்ன செய்ய முடியும், எனக்குள்ள அந்த சமாதானத்தை தர முடியுமா, பணம் கொடுக்கறதான சமாதானத்தை இயேசுவால் தர முடியுமான்னு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு. मुझे ऐसा एक सवाल था, जो पैसा जो है शांति नहीं देता है, वो शांति को प्रभु यीशु दे सकता है क्या, ऐसा मुझे एक सवाल था। அப்போதான் இந்த வேதாகமத்தை பைபிளை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். उसी समय बाइबल को मैं जो है धीरे धीरे पढ़ने लगा।
இந்த சமாதானத்தை இயேசு தர முடியும்னா எப்படி தருவாரு? பணம் இல்லைன்னா எப்படி இயேசு சமாதானம் தர முடியும்? पैसा नहीं है तो यीशु मसीह कैसा शांति देगा? पैसा है तो अपना शांति मिलेगा, तो पैसा नहीं तो कैसा प्रभु यीशु शांति देगा? அப்போதான் இந்த வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க அவர் என்னுடைய பாவத்தை குறித்து உணர்த்தினார். என்னுடைய சமாதானத்திற்கு தடையா இருக்கிற பாவங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் காண்பித்தார். அவைகள் எல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட நான் சொல்ல எல்லாத்தையும் அவர் நீக்கி போட்டார். तब जो है बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरा मन में परमेश्वर ने बातचीत किया, जो पाप है वो पाप के कारण ही शांति नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मेरा पापों को क्षमा करके मेरे दिल में शांति को दिया. அப்போதான் பணம் தான் சமாதானம் தர முடியுங்கிற அந்த நினைவிலிருந்து எனக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை கிடைத்தது. उसी समय मुझे एक ऐसा छुटकारा मिला, पैसा ही शांति देगा, ये विचार से मुझे छुटकारा मिला. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பணம் பேங்க்ல எவ்வளவு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு சமாதானம் இருக்கும். பணம் குறைய குறைய சமாதானம் குறைஞ்சிரும். उसके पहले कैसे बोला, पैसा बैंक में ज़्यादा रहेगा तो शांति के साथ आराम करूँगा, बैंक में पैसा कम होगा तो मैं चटपटाने लगा था. உடனே வேலைக்கு போகணும், நிறைய சம்பாதிச்சு பழையபடி அந்த சமாதானத்தை கொண்டு வரணுன்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு. मैं काम करके फिर जो ऐसा बैंक बैलेंस को लाना है तब मुझे शांति मिलेगा, ऐसा ही विचार था मुझे. இந்த பைபிள் வாசிச்சு என் பாவத்தெல்லாம் இயேசு கிட்ட சொல்லி அறிக்கையிட்ட பின்னாடி இயேசு ஒரு சமாதானம் தந்தாரு. அது எவ்வளவு பேங்க்ல பணம் இருந்தாலும் பணம் இல்லட்டாலும் அந்த சமாதானம் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னை விட்டு நீங்கவே இல்லை. ओ यीशु मसीह जो है मेरा पाप को क्षमा करके मुझे दिया ना वो शांति, जो पैसा दिया नहीं, पैसा कितना रहेगा तो भी वो शांति नहीं मिलेगा, उस शांति प्रभु ने मुझे दिया, वो शांति अभी भी है, मुझसे हटा नहीं. எந்த பணத்துக்காக என்னுடைய பெற்றோர் அப்பா அம்மா சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாமா, இன்னும் அதிக ரிஸ்க் எடுத்து நிறைய சம்பாதிக்கலாமா நினச்சனோ அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு என் சொந்த குடும்பத்தோடு இப்போ நான் இருக்கிறேன். இயேசு பெரிய சமாதானத்தோடு கூட என்னை வைத்திருக்கிறார். मैं परिवार सबको भी छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश गया था, लेकिन अभी मैं जो है अपना लोगों के साथ, पैसा बड़ा नहीं है, शांति चाहिए, परमेश्वर चाहिए, काफ़ी है, ऐसा समझते हुए अपनी जगह में रहता हूँ. இப்போ 10 வருஷமா இயேசுவுடைய ஊழியத்தை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். अभी 10 साल से लगातार प्रभु यीशु मसीह के लिए ही मैं सेवकाई कर रहा हूँ. நான் எவ்வளவு சம்பாதித்து எவ்வளவு பேங்க்ல வச்சிருந்தனோ அதிலெல்லாம் கிடைக்காத சமாதானத்தை இயேசு எனக்கு தந்திருக்கிறார். मैं कितना कमा कर बैंक में पैसा रखा था, उसी समय जो शांति नहीं मिला, ऐसा शांति को प्रभु यीशु ने अभी मुझे दिया है. நான் அங்கே இருக்க போது வெளிநாட்டில் வேலை செய்து நிறைய சம்பாதித்த போது எவ்வளவு பேருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணணும், அதை விட பல மடங்கு அதிகமாக அநேகருக்கு உதவி செய்யும்படிக்கு இயேசு என்னை வைத்திருக்கிறார். मैं जब विदेश में था कमा के बहुत लोगों को मैंने मदद किया था मेरा पैसा से, लेकिन अभी उसी से ज़्यादा लोगों को मैं मदद करने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு முக்கியமான விஷயம், ये सबसे बढ़कर एक मुख्य बात है. வெளியில் இருக்கும்போது வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது சொந்த ஊருக்கு வரணுன்ற எப்படி ஒரு மனதில் ஒரு தாகம் இருந்துச்சோ, जब विदेश में था अपना गांव आना है, ऐसा एक इच्छा मेरा मन में था ना. இதே போல இந்த உலக வாழ்க்கை முடிஞ்ச பிறகு ஒரு சொந்த நாடு அவரோடு கூட இருக்கக்கூடிய அந்த மோட்ச வாழ்க்கை இருக்குதுன்னு இப்போ நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். अभी जो है इस दुनिया से हम जाने के बाद एक जगह है हमारे लिए अपने देश के समान स्वर्ग राज्य है, इसको मैंने समझ लिया. எப்படி நீங்கள்லாம் வெளியில் வந்திருக்கிறோம், வெளியில் வேலை செய்கிறோம், நம்ம சொந்த ஊருக்கு போகணுன்ற எதிர்பார்ப்போடு கூட இருக்கீங்களோ, आप लोग जैसा अपना गांव छोड़कर नहीं आए हैं, आपको मन में ऐसा होता है ना, कब हम अपना गांव जाएंगे, है ना, अपना परिवार को देखेंगे, ऐसा विचार आता है ना. हाँ, அதுக்கு இப்போவே நீங்கள் ரெடியாக இருக்கிறீங்கல்ல, ஒரு பொருள் வாங்கும்போது வைக்கும்போது நான் சீக்கிரமாக ஊருக்கு போயிடுவேன், சொந்த ஊருக்கு போயிடுவேன் எப்படி எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறீங்களோ, எப்படி ஒரு 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 ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் ஆயத்தத்தோடு இருக்கிறீங்களோ, आप कोई भी सामान खरीदेंगे, पैसा लेंगे, आपका दिमाग में हमेशा क्या रहता है, अपना गांव कब जाएंगे, है ना. हाँ, அதே மாதிரி மோட்சத்தில் கடவுளோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய அவரோடு இருக்கக்கூடிய சொந்த நாட்டுக்கு சொந்த ஊருக்கு போகக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். वैसे ही स्वर्ग राज्य में वही अपना जगह है, हमारे लिए है, हम
उधर जाने के लिए परमेश्वर तैयार करके रखा है। அங்க போகிறதுக்கு இங்க தான் நம்ம ஆயத்தமாக முடியும். वहां स्वर्ग राज्य में जाने के लिए यहाँ ही हम तैयार होना है। இங்க தான் நம்ம பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். यहाँ ही हम पाप की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। இங்க தான் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து ஒரு பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை, அவருடைய இரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட பாவங்கள் நீங்கப்பட்ட ஒரு இருதயத்தை நாம பெற்றுக்கொள்ள முடியும். यहाँ ही अभी हम जो है पाप की क्षमा को यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप को शुद्ध किया हुआ अनुभव को हम प्राप्त कर सकते हैं। இதை நம்ம இங்க செஞ்சா தான் சொந்த ஊருக்கு நாம போக முடியும். इसको हम यहाँ करेंगे तब भी हम अपना सगर में स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। அதை செய்யும்படிக்கு தான் ஆண்டவர் நம்மை அழைத்து இந்த வாய்ப்பை தர்றாரு. उसको करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाकर ऐसा मौका को दिया है। இது பெரிய கஷ்டமான விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. மனதார என் பாவத்தை மன்னிங்கன்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டா போதுமானது. ये जो बहुत कठिन बात नहीं है। आप जो है मन लगाकर प्रभु मेरा पाप को क्षमा कर, ऐसा पूरा दिल से प्रभु से मांगेंगे तो काफी है। அவர் சந்தோஷமா நம்முடைய பாவத்தை மன்னித்து அந்த சொர்க்க ராஜ்யத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறார். परमेश्वर खुशी से हमें क्षमा करके स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें तैयार करता है। உங்களை மாதிரி வெளிநாட்டில இருந்து சொந்த ஊருக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டனா இன்னைக்கு இந்த சொந்த ஊர்ல இருந்து என்றைக்குனாலும் அவரோடு கூட இருக்க ஆயத்தமா இருக்கிறேன். आपके समान ही मैं भी विदेश से काम कर कर कब हम अपना देश जाएंगे ऐसा इंतजार कर रहा था एक दिन में, लेकिन अभी जो है ये यहाँ नहीं, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मैं ज़्यादा इच्छुक रखता हूँ। நான் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றிருக்கிறேன். मैं जो है मेरा पाप क्षमा हो गया करके पूरा पूरा जानता हूँ। எப்போ சொந்த ஊருக்கு போனாலும் நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். जब कभी हम अपना गांव जाएंगे उसके लिए तैयार रहता हूँ। நீங்களும் ஆயத்தமா இருக்கும்படிக்கு அன்பாய் உங்களை கேட்கிறேன். आप भी तैयार रखने के लिए आपसे प्रेम से विनती करता हूँ। थैंक यू. கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. धन्यवाद प्रभु आपको आशीष करने का। ठीक है, थैंक यू। आपको समझ में आया ना? आप लोग भी अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर यहाँ रहते हैं, लेकिन मन में हमेशा क्या विचार है? अपना घर कब जाएंगे, है ना? विचार आता है कि नहीं आता है? अपना गांव का कोई भूल सकता है? नहीं ना, कभी नहीं भूलेंगे ना। वैसे ही समझ ले हमारे लिए और एक जहाँ है वही है सच में अपना जहाँ, वो स्वर्ग राज्य। ठीक है, प्रभु की महिमा हो। आज एक विशेष दिन है। क्या दिन है किसी को मालूम है? आज कौन सा विशेष दिन है? हैं? कोई बोल सकते हैं? आज जो है कौन सा विशेष दिन है किसी को मालूम? इतवार केवल यही मालूम है। आज कौन सा डे? संडे। और फादर्स डे कौन सा दिन मालूम है? ये बात आज कौन सा दिन? फादर्स डे। मतलब पिताजी के लिए एक दिन को पूरा दुनिया में लगभग 52 देश में माना जाता। ठीक है ना? फादर्स डे। अपना अपना पापा को याद करके अपना पिताजी के लिए कुछ गिफ्ट देना, उनको प्रणाम करना, आदर करना, ऐसा काम को करते हैं। कितने लोग का अभी पिताजी है ना? है ना? हाँ, उसके लिए हम दुआ करेंगे। बाइबल बतलाती है अपना माता पिता का आदर करना है। माता पिता का क्या करना है? बोलिए क्या करना है? आदर करना। माँ बाप से झगड़ा नहीं करना है। जो कमाते हैं उसको माँ बाप को देना है कि नहीं देना है? हैं? देना है। कुछ लोग जो है पिताजी को आदर नहीं करते, है ना? लेकिन हम अपना पिताजी को आदर करेंगे। जो कमाते हैं उसका हाथ में देंगे, उसको कुछ हम बड़ाई करेंगे, है ना? परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ठीक है? मैं जो है एक दिन एक पति और पत्नी 2 जन अपने आप को आत्महत्या करने के लिए
आने के समय देखा ये लोग रेलवे पटरी पर लेटकर मरने के लिए आए थे। तब मुझसे कुछ लड़के लोग दौड़ के आकर कहे, अंकल अंकल यहाँ जो है 2 जन रेलवे पटरी में मरने के लिए जा रहे हैं। बिहार में मेरा घर के बगल में ही रेलवे पटरी, ठीक है ना। तब कलकत्ता से जो ट्रेन आएगा दिल्ली, सारे ट्रेन जो है मेरे घर के बगल में ही जाएगा। तब जो है मैंने दौड़ कर गया, वहाँ रेलवे पटरी के पास एक परिवार, मैंने जाकर दोनों को खींच कर लाया, आइए करके ना, मैं मरेंगे हम लोग मर जाएंगे। मैं जो है दोनों को ज़बरदस्त खींच कर लाकर चर्च में बैठा कर उन लोगों को खाना खिलाया। रात के समय था, दोनों को खाना खिलाया। दोनों खाने के बाद उन लोगों को मैंने बाइबल से एक बात को सिखाया, परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर कौन है? हमारा पिता। सच में सुनिएगा, हमारा शरीर के लिए पिता है इस दुनिया में, हमारा अंदर जो प्राण है ना उसके लिए कौन पिता? वही है परमेश्वर, खुदा। मैंने उन लोग को ये बात को समझाया, ये भैया समझ ले, ये बहन समझ ले, हमारे लिए सच में एक पिता है, वो स्वर्ग राज्य में है। इसलिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना करने के लिए कब सिखाया? हे हमारे स्वर्गीय पिता, ऐसा बोलने के लिए सिखाया। परमेश्वर को कैसा बोलना है, कैसा बुलाना है? हे हमारे स्वर्गीय पिता। बोलेगा हे हमारे स्वर्गीय पिता। बोलेगा कैसा? हे हमारे स्वर्गीय पिता। परमेश्वर कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता। वो पिता कैसा है इसको आप समझना है। ऐसा बोल के मैं बाइबल से एक बात को उनको सिखाया, ठीक है ना। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 103 का 13 में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसा पिताजी अपने बच्चों पर दया करता है वैसे ही परमेश्वर भी अपने लोगों पर क्या करता है? जो कोई उनका डरता है उन पर दया करता है, वो दयावंत है। इस बात को उनको समझाकर बाइबल में यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के बारे में सिखाया, परमेश्वर कैसा है, स्वर्ग राज्य कैसा है। इसको लोगों को समझाने के लिए एक उदाहरण बताया, उसी को मैंने उनको सिखाया। लूका रसूल समाचार 15वां अध्याय में यह बात लिखा, एक व्यक्ति को 2 बेटे थे। कितना बेटे? 2 बेटे। 2 बेटे में छोटा बेटा जवान था। उन्होंने अपना पापा से आकर कहा, पापा जो संपत्ति है, हम लोग 2 बेटे हैं, आपका संपत्ति हम लोग दोनों को है, आप एक काम करें, मेरा भाग को अभी दे दे। 2 भाग करके आप मरने के बाद, है ना, अभी ही दे दे, मेरा भाग को अभी हमको क्या करे? दे दे। तब वो पिताजी दे दिया, ठीक है, 2 भाग करके बड़ा बेटा को यह है, छोटा बेटा तुम्हारे है। कुछ दिन हुआ, ये छोटा बेटा बदमाश क्या क्या मालूम है, सारे संपत्ति को बेचकर पैसा लेकर विदेश चला गया, दूसरा देश चला गया। वहां जाकर एकदम मजा उठा के, कुकर्म करके, अधर्म करके अपने सारे पैसा को उड़ाया, सारे पैसा को एकदम ताम तुम करके, गलत काम करके खर्चा कर लिया। क्योंकि वो तो खुद मेहनत करके कमाए नहीं, पिताजी का पैसा है, इसका वैल्यू वो नहीं समझा, पूरा खर्चा कर लिया। अभी अचानक क्या हुआ, उस देश में बारिश नहीं पड़ा, अकाल आ गया, किसको नौकरी भी नहीं मिला, इनके पास जो पैसा था सब खर्च हो गया। ये क्या करूं समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या क्या मालूम है, एक व्यक्ति के पास नौकरी मांगा, हमको नौकरी दीजिएगा, मैं काम करेंगे। उन्होंने काम दिया। क्या काम मालूम है? सुअर चलाने का काम। क्या चलाना है? बड़ा धनवान का बेटा
अपना सारा संपत्ति खो गया, लेकिन अभी नौकरी, क्या नौकरी मिल रहा है? सुअर चलाना। सुअर चलाने के समय उनको बहुत भूख लगता है, कोई भोजन नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, वो महीना में एक बार देगा, है ना? ऐसा नहीं देता है, महीना में एक बार देता है, कहीं कहीं सप्ताह में एक बार वेतन देता। उनके पास पैसा नहीं, भूख लगता है, वो जो सुअर खाएगा ना, उस भोजन को खाने के लिए वो सोच रहा है, लेकिन उसको भी मालिक नहीं दे रहे, वो तुम्हारे लिए नहीं, वो सुअर का। सुअर भी खा रहा है, लेकिन इनको खाने के लिए कुछ नहीं, भूखे मर रहा। बाइबल बतलाती है उसी समय उनको दिमाग खुला, वो अपने आप में आया। मैं उसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेगा। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अभी पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तब दिमाग काम कर रहा। मेरा पापा का घर में कितने लोग जो है इतना खाता है, इतना सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं यहाँ कैसा मर रहा हूँ? भूखे मर। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, बोलूंगा मेरे पिता से, हे पिता, मैं आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया हूं, अभी मैं आपका बेटा कहने के लिए योग्य नहीं, मुझे ऐसा ग्रहण कर ले, आपका दास के रूप में, नौकर के रूप में मुझे ग्रहण कर ले। ऐसा मैं बोलकर मेरा पप्पा के पास चला जाऊंगा करके उनके पिता के पास जा रहा। अभी एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा, ऐसा एक बेटा आ रहा है, वो पिताजी क्या करेंगे? उनको ग्रहण करेंगे, मारेंगे, डांट देंगे, क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप बोलिए। आप जो है, आपका बेटा ऐसा करता है, आपका सारा संपत्ति उड़ा दिया, ठीक है ना, गलत काम करके, फिर आ रहा, आप क्या करेंगे? हाँ, ले लेंगे, साथ ले लेंगे, साथ ले लेंगे। भैया बोल रहे हैं, देखिए एक पिताजी है, ले लेंगे अपने पास, ले लेंगे। यही बाइबल में लिखा है, यही बाइबल में लिखा। वो आ रहा है, वो पिताजी क्या किए मालूम है? बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुम्मा। जैसा भैया बोल रहे हैं वैसे ही वो पिताजी किया, दौड़कर अपना बेटा को देखकर दौड़कर उनको गले लगाया, बहुत चुम्मा। और बाइबल में आगे लिखा है, उनके लिए चप्पल दिया, उनके लिए अच्छा कपड़ा दिया, उनको एक अच्छा रिंग दिया और बड़ा बोझ को घर में रखा। ऐसे ही एक पापी मन फिराएंगे तो स्वर्ग राज्य में, ये स्वर्ग के पिता के सामने बहुत खुशी होता है। इस बात को यीशु ने सिखाया। परमेश्वर कैसा प्रेमी है, वो स्वर्गीय पिता कितना प्रेमी है, इसको समझाने के लिए ये उड़ाऊ पुत्र कहानी, इसको कहते हैं हम लोग उड़ाऊ पुत्र कहानी। कैसा भी गलत कर लिया, लेकिन मन फिरा कर आएंगे तो परमेश्वर कैसा है उनको? हाँ, गले लगाकर ग्रहण कर लेगा। मैं इसको कहे ना, किसको कह रहा हूं? जो आत्महत्या करने के लिए आए ना, वो पति पत्नी दोनों को बैठाकर रात में इस बात को बाइबल से उनको सिखा रहा हूं। मैं सब बोलने के बाद वो व्यक्ति क्या कहा मालूम है? भैया आप अभी जो कहे थे ना, और एक बार कहे। मैं इतना लंबा चौड़ा कहानी बाइबल से सिखा रहा हूं, वो क्या कहता है? फिर एक बार
मैंने पूछा क्यों? नहीं, आप जो कहते हैं ना, ये मेरा कहानी है। किसका कहानी? मेरा कहानी। वो गांव पूरा पूरा वे लोग जो है व्यभिचार करने का काम करते हैं। वो व्यक्ति कहा, मैं राजपूत जाति का हूं, मैं मेरा पापा से पैसा लेकर इस लड़की के पास देकर अंत में इस लड़की से फंस गया हूं। 5 लाख से अधिक मैं मेरा पापा से लाकर इनको हाथ में दिया। अभी बच्चा भी हो गया, फिर भी मांग रही है पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। मैं अभी पापा के पास जाकर पैसा मांगेंगे तो मेरा पापा मार के मुझे भगाएंगे। मुझे क्या करना है समझ में नहीं, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए आया। इसलिए मैंने कहा यह मेरा कहानी है। लेकिन आप बोलते हैं पिताजी गले लगा रहे। मैंने कहा जी, परमेश्वर ऐसा ही है, आपको बहाएंगे नहीं, आपको हटाएंगे नहीं, आपको गले लगाएंगे। आप अपने पाप को छोड़ दें, यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। मेरी बात समझ में आता है ना? समझ में आता है ना? परमेश्वर ऐसा प्रेमी है, ऐसा प्रेमी है। आप यीशु के पास आइएगा, अपने पाप को छोड़ के, बुराई छोड़िए। आज कुछ लोग क्यों नहीं आए, मैंने पूछा, दारू पीकर लेट गए हैं। कुछ लोग है ना, ऐसा है ना? ये सब सही है, कर सकते हैं हम लोग। ये सब बुराई को हम लोग क्या करना है, छोड़ दे। क्योंकि हमारे परिवार है, बाल बच्चा है अपना का, है ना, माँ बाप है। यहाँ पैसा कमा के दारू पी के सोएंगे तो वो लोग क्या कहेगा, है ना? ये सारे बुराई को हम छोड़ देंगे, प्रभु के पास आएंगे। प्रभु यीशु आपको गले लगाएगा, बहुत छुमाएगा, आपके सारे जरूरतों को पूरा कर। प्रार्थना करेंगे अपने पिताजी के लिए, जिसके पास जिसका पिताजी है घर में, हाथ उठा के देखा सकते, पिताजी है, बीबी पिताजी है ना? कुछ लोगों को पिताजी नहीं होगा, जिसके पास पिताजी है उसके लिए आप प्रार्थना करना है कि नहीं? हाँ, आज आप अपना पिता को फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके, है ना, बधाई बोलिएगा, ठीक है ना, हैप्पी फादर्स डे बोलिएगा। मेरी बेटी सुबह सुबह मेरे पास आई, वो बोली हैप्पी फादर्स डे, है ना? आप भी बोलिएगा। आपको पिताजी को कुछ गिफ्ट लेकर दे, अपना प्यार को बताइए, परमेश्वर आशीष करे। वही है सच्चा प्रेमी पिता। प्रार्थना करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयाल तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयाल तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। खोए हुए थे, भड़के हुए थे, ढूंढने हमें आया। खोए हुए थे, भड़के हुए थे, ढूंढने हमें आया। गले लगाया, चुमा है हमको, शरण में ले आया। चुमा है हमको, शरण में ले आया। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयाल तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयाल तारनहार, त्रिएक परमेश्वर।
हाथ जोड़कर अपना पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? अपना पिताजी के लिए, हे प्रभु मेरा पिताजी को मैं अभी याद करता हूँ, उन्हें आशीष कर, उन्हें रक्षा कर। मैं मेरा पिताजी का प्रेम को समझ नहीं पाए, मेरा पिताजी को कभी भी मैं दुख नहीं देने पाए, मुझे सहायता कर। वैसे ही ये स्वर्ग के पिता, मैं तुझे भी दुख नहीं देने पाए, आपके विरोध में कोई पाप करने ना पाए। जो पाप किया हूं मुझे क्षमा कर, मुझे ग्रहण कर, मुझे आशीष कर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिताजी, आशीष कर। हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, आपके चरणों तले आए, आशीष कर। हमारे भाई बहन का सारे जरूरतों को पूरा कर, कोई कमी कट्टी नहीं रहने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करेगा।